So today we are starting our third chapter of the NCERT textbook, linear equations in two variables. Now see, basically when we have studied in our ninth standard about polynomials हमने पढ़ा था ninth standard में, you know this thing. So in our ninth standard we have studied about polynomials. Polynomials पढ़ाते हुए ना मैंने एक चीज़ बताई थी तुम लोगों को, that if we are having a polynomial of degree 1, if we are having a polynomial of degree 1, degree you know the maximum power है ना, in an algebraic expression जो हमारी maximum power होती है ना उसको बोलते हैं. So if degree of a polynomial is 1, that means we call it as what? Linear. हम उसको बोलते हैं लीनियर, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल हम बोल देते हैं. देन सेकेंड थिंग इज इफ डिग्री इज 2 वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक. अगर दो है ना, इफ डिग्री इज 2 वी कॉल इट क्वाड्रेटिक, देन 3 क्यूबिक, लाइक दिस. बट सी here we are going to study about only linear. Our chapter name is linear equations now, so we will be studying about linear equations only. Now suppose I am writing some equations here, like in equation, remember this thing, when we are talking about equation, expression and equation are two different things. This thing you should remember. If someone is asking about expression, if you are writing like this, x plus 3, okay, if I am writing simple x plus 3 equal to only x plus 3, then it is what? It is a expression, it is not a equation. X plus 3 I am writing. But if I am taking x plus 3 equal to 5 equal to 0, something like this, है ना, then it becomes what? It becomes a equation. Okay, so this is the simple difference between a equation and an expression. Expression can be anything like x square plus 5, x cube minus 3, anything, है ना. So if we are having a equal sign, then we call it as equation. Now see, this equation I have written, in this equation, see, we are having a variable is what? This is x is our variable, and the highest degree of the variable in whole the equation, जो हमारी complete equation है ना, इसमें highest degree of the variable is what? It is 1, है ना. So we can call that it is what? It is a linear equation. Now coming to the variables, how many variables are here in this equation? कितने variables हैं इस equation में? Then it is only having one variable. So this equation that I have written, जो मैंने यहाँ पे equation लिखी है ना, this is a linear equation in how many variable? Only one variable. This is a linear equation in one variable. Okay, one variable. Now if I am talking about two variables, suppose I am writing a equation x plus y equal to 5. Okay, I have written x plus y equal to 5. Now in this equation also, see, first you will be checking the degree of the variables की degree को, power को check करोगे. Okay, now this x is having power 1, this y is having power 1, so that means what? We are having two variables, both are having power 1, so that means what? These are linear equation. This is a linear equation in two variables. Similarly we can write, अगर हम लिखते हैं x plus y plus z equals to 7. Okay, I am writing like this, x plus y plus z equal to 7. Now in this all the variable are having power 1, सब variables की power कितनी है? 1. So that means I can say it is a linear equation in 3 variable. ये 3 variable में है. So if I am writing, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ suppose x raised to power 3, okay, plus y, okay, just simply, okay, equal to 3. Okay, x raised to power 3 plus y equals to 3. Can I write it as a linear equation? क्या मैं इसको linear equation लिखूँगा? No, I'll not be writing, है ना, इसको linear equation नहीं लिखेंगे. Why? Because this x is having power 3, है ना, y की power तो 1 है, but x is, yes, but this x is having power 3, so we will not be writing it as a linear equation. हम इसको linear equation नहीं लिखेंगे. Okay, so this is the basic understanding of a linear equation. Just you have to check
व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर इन द होल इक्वेशन, मैक्सिमम पावर कितनी है, इट शुड बी वन ही होनी चाहिए. Okay, then second thing, how many variables it is having. On the basis of that you will be writing that it is in one variable, it is in two variable, like this. Now coming to the standard form of a linear equation, a standard form of a linear equation like we have studied about quadratic की भी हमने पढ़ी थी ना. तो standard form क्या होता है, ax plus by plus c equal to 0. Okay, ax plus by plus c equal to 0. This is the standard form of a linear equation that you will be following, है ना. Whenever you are forming a linear equation in two variable, जब भी तुम लोग linear equation बनाओगे ना two variables में, so this is the format you will be following, ax plus by plus c. You know about the coefficient and all. See, this a is the coefficient of x, this b is the coefficient of y, and this c is what, some constant term. Okay, these are the some common things. You know about coefficients, we have already studied these things ना. ये हम पढ़ चुके हैं कि coefficient क्या होता है, constant क्या होता है, variables क्या होता है. So all these things we will be following in this chapter also. Okay, now the next thing, suppose you are given with some equations like 3x why it is not writing. Okay, so suppose we are given with the equation 3x, no, still it is not writing perfectly. Now see, I have written an equation here, 3x plus y equal to 7. Now if someone is asking you what is the value of a, b, c here, so see, simply you will be forming it in standard form first. पहले इसको standard form में लिखना है completely. It is not in standard form, ये standard form में नहीं है. So you will be writing like 3x, okay, 3x plus y, then minus 7. Yes, you will be taking here minus 7, just equals to 0. Then it will be in what, standard form. तब ये standard form में आएगा. Okay, so then you can write the value of a, b, c. तब तुम लोग लिख सकते हो a, b, c की value. So this is how you will be writing. Simply देखो, हर equation को ना standard form में लिखना आना चाहिए. How we are going to write. अच्छा, अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर ली, कोफिशिएंट्स एंड ऑल. अब एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है. हाँ, इफ़ वी हैव टू सोल्व अ लीनियर इक्वेशन, सपोज आई एम हैविंग अ इक्वेशन x प्लस 3 equal to 0. Okay, which kind of equation is it? X plus 3 equals to 0. Which kind of equation is it? It is a linear equation, but in linear equation in one variable. Yes, it is a linear equation in one variable. ये बिल्कुल correct है. So that means what? If I will be writing the solution of this one, I can simply write that x will be equal to what? Minus 3. And this is the only solution. Is there any other solution possible for this equation? No. Because if we are having the x value minus 3, अगर हमारे पास x की वैल्यू -3 है, then only we can get इक्वल टू 0. तभी हमारे पास RHS और LHS जो है इक्वल आएगा. ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करना चाहिए ना. कोई भी इक्वेशन है, इफ़ इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द साइड्स, देन वी कैन से इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तभी हम बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन है. ओके, नाउ x plus 3 equal to 0, that means x equal to minus 3. Similarly, if I am having y minus 7 equal to 0 or 4, I am taking suppose 4, then what will be the answer of this one? So you will be saying y will be equal to how much? It will be 11. Okay, so this is how we are solving a linear equation in वन वेरिएबल. जब हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है ना, तो बहुत सिंपल होता है सोल्व करना, है ना. उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इफ़ वी आर हैविंग ओनली वन वेरिएबल. बट इफ़ टू वेरिएबल्स आर देयर, अगर वहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स हो जाते हैं, सपोज फर्स्ट वन आई एम टेकिंग, एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, x
यहाँ पे प्लस, आई एम नॉट गेटिंग, okay, wait, I'll try to write with this one. Yes, x then plus y equal to 5. Okay, now if I am asking you to solve this one, अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि इसको solve करो, x plus y equal to 5, is it possible for you to solve this equation? क्या तुम लोग इसको भी आंसर कर पाओगे? इफ़ वी आर हैविंग अ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि ये वाली इक्वेशन है भी हमारे पास, टू वेरिएबल्स में है ये। अब इसमें तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करता हूँ और y की जगह 4 पुट करता हूँ, सो 1 + 4 आई एम गेटिंग व्हाट, 5, है ना। इफ़ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 3, देन ऑल्सो आई एम गेटिंग 5. सो इफ़ आई एम गेटिंग x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 2, then also I am getting 5. So है ना, हाँ, so that means what, we can get how many solutions I will be getting? Is it a unique solution? क्या ये unique solution है? No, we are getting infinite, है ना, we are getting infinite solution if we are given with a single, अगर हमारे पास एक सिंगल एक सिंगल इक्वेशन है ना टू वेरिएबल्स की, दैट मीन्स ऑलवेज वी विल बी गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम लोगों ने जब ग्राफ्स बनाए हैं ना 9th स्टैंडर्ड में, 9th में जब इस टाइप की इक्वेशंस के ग्राफ बनाए थे तो हमने वही किया था, वी वर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। सो दैट मीन्स व्हाट, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बट हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, ये करना ही नहीं है। व्हाट वी विल बी डूइंग, हम क्या करेंगे, ऑलवेज इफ वी नीड टू सोल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द इक्वेशन शुड बी टू, like if I am having x plus y equals to 3 and the other equation is 2x plus 3y equals to 9. Okay, now if we are having two equations, अगर दो इक्वेशंस होती हैं ना, देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड फॉर दिस हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द मेथड्स, है ना, सबको डिस्कस करेंगे, देन वट एवर यू विल फील ईजी, जो ईजियर लगेगा उसको तुम यूज करोगे एग्ज़ाम में। तो अब देखो, हमें अगर इस तरह से इक्वेशन है, वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, वी आर हैविंग ना, सबसे पहले तो हम लोगों को चेक करना है कि क्या इनका सॉल्यूशन निकलेगा भी या नहीं, है ना, इनका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं। तो सबसे पहले अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक इक्वेशन की, ax प्लस by माइनस c इक्वल टू 0, करेक्ट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नाउ इफ आई एम राइटिंग हियर a1 value, from the first equation I will be taking a1 a2 like this, a1 b1 and second में से a2 b2. So what is the value of a1 here? a1 क्या है हमारे पास, a1 that is 1, because the coefficient of x is 1 ना, इस x का coefficient क्या है यहाँ पे 1, so I will be writing a1 as 1. Then what is the coefficient of y, that is b1, b1 क्या आएगा हमारे पास, वो भी 1 आएगा, that is also 1. Okay, now what is the value of c1, that is -3. Okay, c1 is -3. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना, जो मैं ये a1 b1 c1 लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ a2 लिखेंगे हम सेकेंड इक्वेशन से, तो a2 हमारे पास आ रहे हैं, that is 2. Okay, this is 2 a2. Then what is b2 we are having, b2 is 3 and c2 is -9. Okay, c2 is -9. You are getting ना why I am taking -3 and -9, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 9 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया -9. नाउ
अब क्या करना है, देखो वेन एवर यू आर सोल्विंग टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक फर्स्ट वाली एक सेकंड वाली, पेयर इसलिए पेयर बोला जाता है बिकॉज एवरी टाइम वी विल बी सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम दो इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें क्या करना है, when you are written with a1 b1 c1 a2 b2 c2, जब तुम ये वैल्यूज लिख लोगे then try to find what is a1 upon a2, a1 upon a2 क्या आता है, a1 upon a2 will be 1 by 2, okay it is 1 by 2, then what is b1 upon b2, b1 upon b2 क्या आ रहा है, that is 1 by 3, okay this is 1 by 3, then c1 upon c2, c1 upon c2 it is what minus 3 by 9, that means again 1 by 3, ओके क्योंकि माइनस टू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से यहाँ पे माइनस कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, सो 1 by 3। अब देखो इसमें ना तुम लोगों को क्या है, थोड़ा सा आगे जब ये a1 a2 a1 upon a2 b1 upon b2 c1 c2 निकाल लोगे ना, देन चेक वेदर दिस a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, क्या ये a1 upon a2 जो है हमारे पास यहाँ पे a1 upon a2 इज इट इक्वल टू b1 upon b2, क्या वो इक्वल है, नो, ओके सो यू विल बी पुटिंग अ साइन, यहाँ पे तुम लोग एक साइन पुट करोगे, आई एम फेसिंग सम ट्रबल्स with this writing pad again, b1 upon b2, b2, why it is not writing, okay this is b2 बट दीज आर नॉट इक्वल, है ना, दोनों इक्वल नहीं हैं, तो तुम लोग यहाँ पे इस इक्वल साइन को कट करोगे, ऐसे ना क्रॉस कर दोगे, इक्वल के ऊपर मीन्स एक लाइन ऐसे लगा दोगे, दैट विल रिप्रेजेंट दैट योर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे। एंड इफ दे आर नॉट इक्वल, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है ना, दैट मीन्स यू कैन सोल्व दिस इक्वेशन, तुम लोग सोल्व कर सकते हो, एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन, ओके तुम लोगों को यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा ना फर्स्ट वाले केस में, दैट विल बी यूनिक, यूनिक का मीन्स होता है सिंगल, ओके यूनिक सॉल्यूशन यू विल बी गेटिंग हियर, एक ही सॉल्यूशन आएगा, मीन्स ओनली वन वैल्यू ऑफ x एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y, एक ही वैल्यू आएगी x और y की, आगे हम सॉल्व करेंगे। अभी तुम लोगों को क्या याद रखना है, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब इक्वल नहीं आता है, सो इन दैट केस वी गेट व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज़ और देखो, जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, लीनियर का मीन्स क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन का, इफ़ आई विल बी फॉर्मिंग द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा फॉर फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ आई विल बी हैविंग फॉर फर्स्ट इक्वेशन, इट विल बी अ लाइन, एक लाइन आएगी ना, यस because we are studying about linear equation ना, so linear equation that means if I am drawing a graph, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा then the graph will be what, it will be a straight line, then for the second one also, अगर मैं second one के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करूँगा it will also be a straight line, एक straight line ही आएगा वो वाला भी। see अगर ये दोनों straight lines ना, if we are drawing a graph, और अगर ये दोनों straight lines if they are cutting at a single point, एक single point पे कट करेंगी ना ग्राफ में, you know अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं अपने दो एक्सिस ऐसे, तो ये वाला हमारे पास क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेट बनता है, इट विल बी अ कोऑर्डिनेट ना, सम लाइक 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस वन, है ना, सो इट विल बी हैविंग वन वैल्यू ऑफ x एंड अदर वैल्यू ऑफ व्हाट, y, so this is what, this is the solution of the equation, यही होता है solution of equation, जो वैल्यू ऑफ x आती है ना, जहाँ पे ग्राफ ने एक दूसरे, ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया है, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द x इन द इक्वेशन, एंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द ग्राफ इज व्हाट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर, एंड सी दीज आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सो
दैट मीन्स वट, वेन एवर वी आर हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है, यूनिक कब आएगा, वेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ना तब यूनिक आएगा। और यूनिक के केस में हमारे पास कैसा ग्राफ बनता है, ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। ओके यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो योर ग्राफ विल बी ऑफ विच काइंड, दैट विल बी ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। द लाइन्स विल इंटरसेक्ट ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यूनिक सॉल्यूशन काइंड। नाउ इफ इन केस अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा केस आ जाता है दैट योर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 जो आता है वो इक्वल आ जाता है b1/b2 के। ओके आई ट्राई टू राइट इट हियर, a1/a2, okay, this is a2 is equal to b1/b2, b1/b2। अब इस केस में तुम लोगों को क्या करना है ना, अगर तुम्हारा a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2, देन यू विल बी लुकिंग फॉर c1/c2 ऑल्सो, तब तुम लोगों को ये वाला भी चेक करना है। देखो फर्स्ट केस में, जब मैंने फर्स्ट केस ये वाला कराया था ना, इस फर्स्ट केस में मैंने c1 c2 की बात ही नहीं की थी, है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं की मैंने, बिकॉज अगर हमारा a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 तो हम चेक ही नहीं करेंगे c1 c2 को। बट अगर ये दोनों इक्वल हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो इक्वल, अगर थर्ड वाला भी इक्वल है c1/c2, c1/c2, इस केस में हमारे पास क्या होता है, इस तरह से लाइन बनती है ग्राफ में, एक लाइन ये वाली बन गई, ठीक है, और दूसरी लाइन भी एग्जैक्टली इसके ऊपर ही जाती है, सेम। देखो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक लाइन ये ब्लैक वाली है ना, तो दूसरी वाली भी क्या होगी, सेम उसके ऊपर ही जाएगी, बिल्कुल सेम। दैट मीन्स व्हाट, इस केस को हम क्या बोलेंगे, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट एवरी पॉइंट, वो एक दूसरे को टच कर रही है ना ऑन एवरी पॉइंट, एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। सो इन सेकंड केस क्या है, जब हमारे पास तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, in that case coincident lines are there। coincident means they are टचिंग ईच अदर एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है। सो दीज आर कोइंसिडेंट लाइन एंड इन दिस केस विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जब लाइंस ने एक पॉइंट पे, जो फर्स्ट केस था, ये वाला जो फर्स्ट केस था जो मैंने यहाँ पे कराया था, दिस वन, जब इन दोनों लाइंस ने सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया था, हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी वर गेटिंग, कितने सॉल्यूशंस मिले, वन यूनिक सॉल्यूशन। नाउ इन दिस सेकंड केस में द लाइंस आर टचिंग एट एवरी पॉइंट, सो दैट मीन्स वी विल बी गेटिंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो दैट यू आर गेटिंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस कौन सा हुआ, b2 and c1/c2 all three are equal। यूनिक सॉल्यूशन कौन सा हुआ, जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस का भी ध्यान रखना है। नाउ द थर्ड केस, अब थर्ड केस क्या आता है कि अगर a1/a2 जो है ना, देखो यहाँ पे लिखते हैं इसको, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 is equal to b1/b2, but the third one is unequal, b1/b2, okay, but the third one is unequal, third one that means c1/c2, ये वाला इक्वल नहीं है अब। सो इन दैट केस हमारे पास, अच्छा देखो दो लाइंस के लिए ना, इसको यहाँ से समझना, दो लाइंस के लिए क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल होती है। फर्स्ट सिचुएशन क्या थी कि उन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को क्या किया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। सेकेंड इक्वेशन क्या थी कि दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, ओवरलैप। और थर्ड इक्वेशन क्या है, दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी पॉइंट पे।
सो दिस इज द थर्ड वन। और अगर वो दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, विल वी गेट अ सॉल्यूशन? क्या हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा? we will not get. So this is the third case. Third case, when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2. So this is the third case where we will get no solution, जहाँ पे solutions नहीं आएंगे. Okay, and this, in this case, which kind of lines are there? Parallel lines. Parallel lines. So these three cases you have to remember. ये तीनों केस तुम लोगों को जरूर याद रखना है. यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइंस. सो इफ दिस इज द केस, वी विल सोल्व द इक्वेशन. हम उसको आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को. इफ सेकेंड केस इज देयर और द थर्ड वन, ये जो थर्ड केस है, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, इन दोनों केसेज को हम सोल्व नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू सोल्व. कोई बेनिफिट ही नहीं है. ठीक है. अब एक और चीज़, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. कई बार ना पेपर में क्वेश्चन आ जाता है विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं? अब देखो, अगर कोई इक्वेशन उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लाइक यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, सॉल्यूशन तो आ रहा है ना इसमें, सो दिस इज व्हाट? कंसिस्टेंट. हाँ, वही मैं बताता हूँ, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. ओके. देखो, इफ यूनिक सॉल्यूशन इज देयर, दैट मीन्स वी आर गेटिंग सम सॉल्यूशन. हम इस वाली इक्वेशन में हम लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है, वी आर गेटिंग ना. सो इट इज कंसिस्टेंट. द लीनियर इक्वेशंस आर व्हाट? दीज आर कंसिस्टेंट. देन सेकेंड केस, सेकेंड इज व्हेन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर देयर. Again, infinite solutions are there, but we are getting some solution ना. हमारे पास कुछ तो solution आ रहा है. So this is also what? Consistent. ये वाला भी क्या आएगा? Consistent. But when the third case is there, third case is which one? When we are not getting any solution. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. So we are not getting anything. So that means it is what? Inconsistent. The equations are inconsistent. इस वाले केस में inconsistent आता है. अच्छा, एक और चीज़, इस वाले कंसिस्टेंट में जो हमने फर्स्ट केस में लिया और सेकंड वाले कंसिस्टेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है. फर्स्ट वाले और सेकंड वाले केस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है. जो सेकंड केस, व्हेन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसमें भी हम कंसिस्टेंट लिखते हैं, बट वी राइट डिपेंडेंस ऑल्सो. डिपेंडेंट. The equations are dependent on each other. The equations are dependent. Why we write dependent? Because all the three, a1 a2 b1 b2 and c1 c2 are what? Equal. तीनों के बीच में कॉमन ले सकते हैं हम, तीनों इक्वल आती है. थ्रू एग्जाम्पल्स वी विल लर्न हाउ दीज आर डिपेंडेंट, कैसे डिपेंडेंट होता है वो. ठीक है. तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी बताई है ना, यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, ये सब कॉमन चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर में, ये तुम लोगों को याद रखना है.